آج جس بارے میں خدا نے میرے دل میں ڈالا اور جس بارے میں ہم بات کریں گے، اٹس ویری امپورٹنٹ ان آور فیتھ، اور وہ ہے قربانی. جیسے ہم کہتے ہیں نو پین نو گین. جب تک ہماری قربانی نہیں ہم دیں گے، جب تک خداوند کے ساتھ ہم نہیں رہیں گے اور وہ قربانی قبول نہیں ہوتی، ہماری زندگی بے فائدہ ہے. کلام میں لکھا ہے کہ چند دیر کی قربانی، پالوس نے لکھا ہے چند دیر کی قربانی سے وہ خوشی جو ہمیں ملے گی بعد میں، وہ بہت بہت زیادہ معنی رکھتی ہے. ہم 2 منٹ میں جو ہمارے لوگ ہیٹ کرتے ہیں یا قربانی دی جاتی ہے، جو ہمارے پہ پاکستان میں بہت زیادہ کنڈیم کیا جاتا ہے ہمیں، وہ قربانی سے جو تھوڑی دیر برداشت کر لیں اور بعد میں جو خوشی ہے وہ بہت زیادہ معنی رکھتی ہے، کیونکہ اس کو ہم نے دیکھنا ہے، چند دیر کی قربانی کو نہیں دیکھنا ہے. پریز گاڈ. ایک سائنس کی بات میں کروں گا. ہمارے جو یونیورس ہے وہ پلازما سے یا رینڈمنس سے کنیکٹڈ نہیں ہے. یہ ہولڈ جو کرتی ہے یونیورس میں، سارے پلانٹس ہیں، سب کچھ خدا نے جو کریٹ کیا ہے یونیورس، وہ کیسے ہولڈ ہوئی ہوئی ہے؟ اٹس ناٹ رینڈمنس. ایوری تھنگ از ویری پریسائز. خدا نے ہر چیز کو جوڑ، جیسے ہماری باڈی کو خدا نے کریٹ کیا ہے، ایوری تھنگ ہیز اے پرپز، ایوری تھنگ ہیز اے میننگ. ہر چیز کی یونٹی جو ہے اٹس ویری امپورٹنٹ. ایک اسٹرنگ تھیوری ہے جو بہت کافی مشہور ہے، اینڈ نوبڈی کین پروو اٹ. لیکن اسٹرنگ تھیوری یہ ہے کہ یونیورس کی ایک چیز ایک اسٹرنگ سے کنیکٹڈ ہے. اٹس کنیکٹڈ ود اے اسٹرنگ. ایوری تھنگ از کنیکٹڈ بائی سم تھنگ، تاکہ اس کو ہولڈ کر سکے ان پلیس. اب وہ اسٹرنگ کیا ہے؟ دے یوزلی سے اٹس آلموسٹ لائک اے لائٹ جو کنیکٹ کرتی ہے. اینڈ آئی کین سے اٹس دا لائٹ آف گاڈ دیٹ کنیکٹس اس. آمین. اکثر ہوتا ہے ہم جب کس سے ملتے ہیں، کوئی بلیور ہے، ہم کچھ ملتے ہیں، جیسے میں اکثر کبھی کوئی روح سے بھرے انسان سے ملتا ہوں تو آئی فیل دا پریزنس آف گاڈ. ایک ونس کی روح آتی ہے. جب سارے مقدسی مل کے دعا کرتے ہیں، وہ جو ونس کی روح آتی ہے، what is that? That's the string that connects us, the light that connects us. خداوند کی روشنی. خداوند نے سب سے پہلے کیا بنایا تھا؟ کیا بولا تھا؟ let there be light. لائٹ کو بنایا تھا. خداوند کی لائٹ جو ہمارے تھرو آتی ہے، جو بلیورز کے تھرو جاتی ہے، that connects one person to another. That's what is unity. That's what is oneness in the spirit. Amen. That's how the world is kept together, and with my belief, that's how I believe کہ دنیا connected ہے. Scientists are proving کہ the string theory is that the world is connected, people are connected by this light, and that I believe is the light of God. Amen. میں کہوں ابھی میں کلام کی طرف چلتے ہیں. Let's take out our Bibles اور ہم جائیں گے Leviticus chapter 9 اور اس باب کو پڑھیں گے اور تھوڑا سا 10ویں باب کے شروع کو پڑھیں گے. اس کو میرے ساتھ کوئی اگر پڑھنا شروع کرے پہلی آیت سے، میں بتاؤں گا کہاں کا اسکپ کر کے ہم پڑھیں گے. 9 باب پہلی آیت سے. 8ویں دن موسیٰ نے ہارون اور اس کے بیٹوں کو اور بنی اسرائیل کے بزرگوں کو بلایا. یہاں رکیں گے 2 سیکنڈ. 8ویں دن. اب یہ 8واں دن کیا ہے؟ ہفتہ 7 دن کا ہوتا ہے. خداوند نے کلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ 8 دن جو خدا نے دی، 8واں دن جو فگر 8 ہے، ہم اس سے کہتے ہیں 7 بہت امپورٹنٹ ہے، 12 بہت امپورٹنٹ ہے. there is a very important figures too. مگر the figure number 8 is very important. کس کے لیے؟ ہماری سیکنڈ کمنگ کے لیے. why؟ اب کلام میں دیکھتا ہوں ابراہیم کے کتنے بیٹے تھے؟ 8 بیٹے تھے کلام کے مطابق. داؤد کون سے نمبر پہ تھا؟ 8 نمبر پہ تھا. ہم لوگ جب فگر 8 کو دیکھتے ہیں، خداوند نے جب دنیا کو بنایا، ہم 7ویں دن آرام کیا. دوسری کلام میں جیسے لکھا ہوا ہے کہ وہ 8ویں دن ہماری نئی شروعات ہوگی. 8ویں دن ہماری ایٹرنیٹی شروع ہوگی. کلام کے مطابق 8ویں دن ہماری ایٹرنیٹی شروع ہوگی. تو ہماری نئی دنیا، نئے سبب سے خداوند ہمیں 8ویں دن نئی چیزیں دیتا ہے. 7 دن کا ہفتہ، 8ویں دن، حالانکہ ہفتہ 7 دن کا ہے، سبت کا دن آخری دن ہے. پھر دوبارہ سے سنڈے شروع ہوتا ہے. سنڈے والے دن خدا ہمیں برکتیں دیتا ہے، بلیسنگز دیتا ہے. اٹس اے نیو بگننگ اف وی بلیو. اب خداوند نے یہاں کیا کیا؟ اب یہ کیا اسٹوری سن رہے ہیں ہم لوگ؟ جب منسٹری شروع ہوئی تھی، جب خداوند نے بلیس کرنا تھا ہائی پریسٹ کو، ہارون کو اور اس کے گھرانے کو بلیس کرنا تھا، یہ وہ دن ہے. دس از اے ٹائم آف منسٹری. آگے پڑھنا شروع کریں پلیز. خطا کی قربانی کے لیے ایک بے عیب بچڑا اور سوختنی قربانی کے لیے ایک بے عیب مینڈا تو اپنے واسطے لے اور ان کو خداوند کے حضور گزراؤ. آگے بڑھتے ہیں. اور بنی اسرائیل سے کہہ کہ تم خطا کی قربانی کے لیے ایک بکرا اور سوختنی قربانی کے لیے ایک بچڑا اور ایک برا یک سالہ اور بے عیب ہو لو، اور سلامتی کے ذبیحے کے لیے
खुदावन के हुजूर चढ़ाने के वास्ते एक बैल और एक मेंढा और तेल मिली हुई नजर की कुर्बानी भी लो, क्योंकि आज खुदावन तुम पर जाहिर होगा। अब खुदावन ने मूसा को बोला है कि तुमने ये करना है, स्टेप्स 1 2 3 4 5, बछड़े की कुर्बानी, बकरे की कुर्बानी, तुमने you have to sacrifice a bull, ये सब कुछ करना है। इस दिन तुम करोगे तो मैं तुम पे हाजिर हूंगा। The glory of God will shine upon you. I will appear in the tabernacle. Amen. The tabernacle of meeting with God. He's gonna be present. मैं वहां मौजूद हूंगा तो तुम ये सब करोगे। अब आगे हम पढ़ते देखते हैं कि मूसा बोलेगा, हारून को बोलेगा तुमने ये सब करना है और खुदावन की हुजूरी मौजूद होगी, ठीक है। अब आगे है कि सारा वो सब कुछ करता है, he does every single thing। उस दिन 8वें दिन वो सब कुछ जमा करते हैं। It's 2.5 million people जिनके सामने वो सब कुछ करता है। 2.5 million people, huge number, 2.5 million people। Can you imagine? इतने सारे लोगों को खुदावन ने कहा मैं वहां हाजिर हूंगा। अब 2.5 million people के सामने उसने सब कुछ किया है, everything's done। हारून सब कुछ करता है। 22वीं आयत पढ़ेंगे प्लीज, 22वीं आयत पढ़ें प्लीज। 22 से 24 अगर पढ़ लें पूरा पैसेज। और मूसा और हारून खैमा इज्तिमा में दाखिल हुए। नहीं, 22 से 22 से लेके 22 से पूरा। और हारून ने जमात की तरफ अपने हाथ बढ़ाकर उनको बरकत दी। इमेजिन करिए, ये हारून हाई प्रीस्ट है, खुदावंद उसको ब्लेस कर रहा है एज अ हाई प्रीस्ट। अब वो अपने हाथ उठाता है और सबको 2.5 million people को ब्लेस करने लगता है। खुदा ने बोला ब्लेस करोगे देन आई एम गोना अपीयर, ठीक है। वो ब्लेस करे। आगे पढ़े प्लीज। और खदा की कुर्बानी और सौखनी कुर्बानी और सलामती की कुर्बानी गुजरान कर नीचे उतर आया। और मूसा और हारून खैमा इज्तिमा में दाखिल हुए और बाहर निकल कर लोगों को बरकत दी। बाहर निकल के लोगों को बरकत दी। अब ये बात सोचने की, you have to read between the lines। जब भी अब ये टाइम है बेनेडिक्शन का, इबादत खत्म हो गई है, अब बेनेडिक्शन का टाइम है। खुदा ने कहा जब तुम ब्लेस करोगे तब मैं वहां मौजूद होऊंगा। अब वो हाथ उठाता है, ठीक है। हारून एक हाई प्रीस्ट जिसको खुदावंद ने मूसा के थ्रू वादा किया कि तुम ये सब करोगे, मेरे हुक्मों को मानोगे तो मैं वहां हाजिर होऊंगा। वो करता है, हाथ उठाता है, 1 2 3, खुदा मौजूद नहीं हुआ। फिर बड़ा परेशान हो जाता है। अब यहां लिखा नहीं है, मगर वो उसका उधर से उतरना नहीं, ऑल्टर में से उतरना। अब एक और बात है कि इब्रानी हैकलों में जब ऑल्टर बनता है तो वहां सीढ़ियां नहीं होती, वहां रैंप होता है। इंग्लिश में रैंप लिखा है, उर्दू में क्या लिखा है? रैंप होता है। ही कम्स ऑफ ऑफ द रैंप। क्यों होता है? क्योंकि सीढ़ियों पे जब उठते हैं ना, उनके गिरते नजर आते हैं। उनको खुदा ने मना किया था कि तुम्हारी स्किन शो तुम्हारी स्किन शो नहीं हो सकती, तो दे हैड टू वॉक अप एंड डाउन द रैंप। अब वो उतरे, इसका मतलब इबादत खत्म। जब वो उतर गया, वो क्यों उतरा था? क्यों परेशान हो गए थे कि इट्स एम्बैरेसिंग कि 2.5 million people लोग खड़े हुए हैं और खुदावन की हजूरी मौजूद नहीं हुई, वहां पे खुदावन नहीं आया। ही इज वरीड, ही इज एम्बैरेस्ड। वो उतर के फौरन जाता है, अंदर जाता है। कहां जाता है? खैमा इज्तिमा में। खैमा इज्तिमा में कहां जाता है? खैमा इज्तिमा में जाता है। आमीन। They go in the tabernacle, जहां it's the holies of holy, वहां मूसा से जाके अब वो अंदर जाके बात की होगी कि यार क्या हुआ, दिस इज सो एम्बैरेसिंग। मूसा तूने मुझे सब कुछ बताया था ना, खुदा ने जो बताया था वो सब मुझे बताया था। कहता हाँ तूने कुछ स्टेप मिस तो नहीं किया, सब कुछ फॉलो किया। तो हारून, अब सोचा हारून कितने एम्बैरेस फील कर रहा होगा कि मूसा जब तू अपनी छड़ी उठाता है, जब तू अपनी लाठी उठाता है तो दायरे कुलसम के 2 हिस्से हो जाते हैं। मैंने हाथ उठाया, एक खुदावन का खादिम हो के खुदावन ने मुझे चुना है, मैंने काम करना था और खुदा के लिए हाजिर होना था, वादा था खुदा का, कैसे नहीं हुआ? अब फिर क्या करते, दोनों मिलकर वापस आते हैं। 23 आयत मेरे साथ पढ़े प्लीज। तब सब लोगों पर खुदावन का जलाल नमूदार हुआ और खुदावन के हुजूर से आग निकली और सूखी कुर्बानी और चर्बी को मज़बा के ऊपर भस्म कर दिया। लोगों ने ये देखकर नारे मारे और सरनुगू हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड। अब क्या ऐसा हुआ कि अब खुदावन की हजूरी में ऐसा क्या था? जब वो मूसा के साथ मिलकर इन स्पिरिट ऑफ वननेस, क्योंकि देखिए पहले दिन से जब खुदावन ने माउंट साइनाई पे भी जब अपने एहकाम दिए थे, खुदावन पूरे एहकाम नहीं देता। He always keeps something hidden from us ताकि हम उसको ढूंढें, हम जवाब ढूंढें। अगर खुदावन सारे एहकाम दे दे, ये जूश लोग को ही पता है। अब किसी रबी से ही पूछेंगे ना, रैबाई से, तो वो भी आपको ये कहेगा कि खुदावन ने पूरे काम नहीं दिए थे, इसलिए हमने, जैसे मैं बोलता हूं हमेशा कि लॉज थे एंड दे हैड क्रिएटेड ट्रेडिशंस अकॉर्डिंग टू व्हाट द लॉज हैड सेड, और उन्होंने उसको फिर रूल्स बना दिया। क्यों? क्योंकि खुदावन ने मुकम्मल लॉज नहीं दिए थे। दे हैड टू मेक अदर ट्रेडिशंस टू सपोर्ट द लॉज। खुदावन ने ऐसा क्यों किया था कि ईमान से रूह में होकर खुदावन को ढूंढे, उस जवाब का ढूंढे, और जो एक्स्ट्रा माइल हमने चलना है
जो हर चीज खुदा हमें नवाले में नहीं देता. We have to find the extra mile. वो क्या थी कि मूसा के साथ मिलकर in the spirit of oneness, क्योंकि मूसा को हारून as a helper, as a साथी, एक oneness की spirit में दोनों ने साथ काम करना था. खुदावन की ये मर्जी थी, खुदावन ये चाहता था, मगर उसको समझ नहीं आई. उसने अपने आप को embarrass करा लिया. Then he got worried. He goes out, वापस आता है. They go together and they bless the people. और वो सारे ब्लेस होते हैं. उन्हें खुदावन का जलाल देखा और सब ने मुंह पर गिर गए, सिर नुगु हो गए. They fell on their faces. इंग्लिश बाइबल में लिखा है they fell on their faces. And और खुदा को कोई देख नहीं सकता क्योंकि वहां पे आग हो गई. There's fireworks in the place. Can you imagine? Altar में पूरी आग लगी है. खुदावन की तरफ से आग नाजिल हुई, आग पाखरू की आग, जो हर चीज को आग की उस बसर कर दी. अब एक और बात है, जब कुर्बानी दी जाती थी ऑल्टर पे तो जलाया जाता था. क्यों जलाया जाता था? क्योंकि जब वो चर्बी जलती थी तो धुआं होता था, ठीक है, क्लाउड सा बन जाता था. अब वो वजह क्या थी? खुदावन ने क्यों बोला था कि एक जाने का इसके अंदर ताकि क्लाउड बने? क्योंकि जब खैमा इज्तिमा था जो बिल्कुल ऑल्टर के पीछे था, उधर पर्दे के पीछे वो अहद का संदूक था और एक तख्त रखा जाता था खुदावन के वहां हाजिर होने का तख्त. खुदावन वहां बैठता था, खुदावन आके बैठ के देखता था. और जब खुदावन की हुजूरी इतनी ज्यादा ब्राइट और बर्दाश्त के बाहर थी कि वो खुदावन उस धुएं के पीछे छुपता था ताकि लोग मेरी हजूरी को देख ना सके. और धुएं के अंदर खुदावन का मुंह का शक्ल नजर आती थी, कि एक इमेज नजर आती थी जो लोग बर्दाश्त कर सके. आमीन, जो लोग बर्दाश्त कर सके खुदावन की हजूरी. अब हम देखते हैं कि नए नामे में खुदावन यीशु मसीह जो दोबारा आएगा वो बादलों पे आएगा. क्यों? क्या वो वाकई बादलों पे आएगा? नहीं, उसके इर्द गिर्द फरिश्तेगान उसको कवर करेंगे क्योंकि हम उसका जलाल बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे. तो वो एक इमेज देखने के लिए ताकि हम इस लाइट को बर्दाश्त कर सकें, इसलिए फरिश्तेगान एक बादल की सूरत में उसको कवर करेंगे. And that's the key that we miss out on seeing. We miss out on seeing. और जब मैंने पैसे पढ़ा मैंने कहा इसमें हाँ तो वो चला गया, वारा आके उन्हें बरकत दे दी और खुदावन की नाज़िल भी हुआ, मगर the spirit of oneness, the spirit of unity, क्योंकि खुदावन कह रहे हैं मुझे ये कुर्बानियां these are important, but that's not what matters to me. इतने से मैं तुम्हें क्या सिखाना चाहता हूँ? मैं तुम्हें यूनिटी सिखाना चाहता हूँ. अब एक बुल को जब कुर्बान करते हैं वो कितना सर मारेगा? अकेला हारून नहीं कर सकता, उसको अपने साथ एक बंदा रखना पड़ेगा जो हॉर्न्स पकड़ेगा, जो उसके जिस्म को पकड़ेगा, फिर कुर्बानी होगी. कितना मुश्किल है. तो वो 4 बंदे लगते हैं. दैट्स द स्पिरिट ऑफ यूनिटी जो खुदावन सिखाना चाहता है इन कुर्बानियों से, इन बातों से, कि मैं तुम्हें एक साथ देखना चाहता हूँ. जैसे हम लोग वर्शिप करते हैं, खुदा उनका अबर छा जाता है, हम कोई खादिम कलाम देता है तो वो एक हमारे लिए एक गज़ा होती है जो हम खाते हैं और लेते हैं और तंदुरुस्त होते हैं. कलीसिया बैठती है, उससे भी मिलता है कि आपको पावर मिलती है, आपको एनर्जी मिलती है. अगर बिल्कुल ही स्पिरिट में मरी हुई कलीसिया हो तो एक खादिम को कलाम सुनाने में, वर्शिप करने में भी मजा नहीं आएगा. एक यूनिटी, एवरीबडी हैज देयर ओन पार्ट इन द मिनिस्ट्री. कलाम में लिखे वी आर अ रॉयल प्रीस्टहुड. एक बंदा, सिर्फ एक खादिम नहीं, एवरीवन. खुदा हमें प्रीस्ट बोलता है, वी आर द रॉयल प्रीस्टहुड. क्यों? क्योंकि हमारा मिशन वर्क क्या है? वी हैव टू गो एंड वर्क एज मिशनरी. We have to go and spread the word of God. Our call to duty is to spread the word of God, ताकि खुदावन यीशु मसीह का वापस आना जल्द हो, ताकि इस्राएल दोबारा से इकट्ठा हो, खुदावन की भेड़ें फिर से इकट्ठी हो और ताकि खुदावन दोबारा वापस आए. आमीन. थोड़ा सा हम आगे पढ़ेंगे. 10वें बाब के अगर 2-3 शुरू की आयतें पढ़ ले प्लीज मेरे लिए. अगर 5 आयत तक पढ़ लें तो. और नदब और अबीहू ने जो हारून के बेटे थे अपने अपने बखूरदान को लेकर उनमें आग भरी और उस पर और ऊपरी आग जिसका हुक्म खुदावंद ने उनको नहीं दिया था खुदावंद के हुजूर गुजरा. 2 सेकंड यहाँ रुकेंगे. अब उन्हें अबीहू और क्या नाम की नदब उर्दू में नदब और अबीहू, इन्हें क्या किया कि भाई हम भी हाई प्रीस्ट हैं, हम भी हारून के घराने से, हमें भी खुदा ने हाई प्रीस्ट बनाए. तो अब ये जो है हम और कुछ करते हैं. खुदावन ने कुछ नहीं कहा, तो खुदावन ने जो स्टेप्स कहे थे उन्हें कर दिए थे. इन्हें अपनी तरफ से आग लगाने की कोशिश की, हम लोग उस पर और आग डालते हैं, मजा आएगा और मजा आएगा कि हम लोग और खुदावन का रुकेंगे, खुदावन को ऑनर कर रहे हैं अपनी तरफ से. उनका दिल सही था, वो दे वांटेड टू ऑनर गॉड, मगर ये खुदावन की मर्जी नहीं थी. अब खुदावन कितना गयूर खुदावन है हम जानते हैं, जिसको बाप को हम लोग प्रेस करते हैं, वर्शिप करते हैं. बेटे ने आके बेटा हमारी सिफारिश करे, मैंने पिछला कहा था. अब बाप तो वही बाप है. ये नहीं कि खुदावन नफरत करता है या खुदावन को बहुत स्टक अप है या बहुत रूड है खुदा कि खुदावन ने किया. नहीं, खुदावन ने कहा मेरे काम तुमने उसी तरह माने जितना मैंने तुम्हें दिए हैं. खुदावन का कह देखें उस पर
हुक्म हमें मानने हैं. We have to follow the commandments how God tells us, but then we have to find the Holy Spirit in between the commandments to work in unity with commandments and Holy Spirit. अब उन्होंने जब ये किया, फिर अंकल क्या हुआ? 2 आयत से पढ़ना शुरू करें. और खुदावन के हुजूर से आग निकली और उन दोनों को खा गई और वो खुदावन के हुजूर मर गए. तब मूसा ने हारून से कहा, ये वही बात है जो खुदावन ने कही थी कि जो मेरे नजदीक आए जरूर है कि वो मुझे मुकद्दस जाने और सब लोगों के आगे मेरी तमजीद करें. और हारून चुप रहा. अब यहाँ पे खुदावन ने हारून के 2 बेटों को खत्म कर दिया, बिल्कुल खत्म कर दिया. अब खुदावन के प्रेजेंस से वहां पे 2 लाशें पड़ी. हारून के बेटे, हारून जो उस वक्त 2.5 मिलियन पीपल को ही इज लीडिंग, उनके लिए दुआ कर, उनके लिए बरकतें चाह रहे हैं. अब सोचो उस दिमाग में क्या चल रहा होगा. मेरे बेटे खुदावन ने खत्म कर दिए, मार दिए, जो खुदावन को सर्व कर रहे थे. अब हारून को सोचे अब दिमाग में कितनी एक परेशानी होगी. बेटे आंखों के सामने मर गए, जल के मर गए, खुदावन ने मार दिए. अब मूसा उसको बोल रहे कि बस अब ये वक्त है. खुदावन ने कहा था कि ये वक्त है इज टू ऑनर मी, और ऐसा नहीं हुआ तो ये इनको खत्म होने दे. जब खत्म हो गए तो हो गए. अब हारून ने एकदम से कहा चलो ठीक है. वो चुप है, बिल्कुल चुप है. खुदावन की हजूरी में वो बिल्कुल समझ से, हिकमत से वो चल रहा है कि चलो अब हो गया सो हो गया, मुझे अपना पूरा टाइम खुदा को देना. ही इज ऑन द स्टेज. खुदावन उसको, उसके बेटों को मार दिया. वो कह रहा है कि मैंने अभी काम करना है तो करना है, खुदा के लिए मैंने काम करना है तो करना है. अब वहां 2 लाशें पड़ी हैं. अब आगे मूसा कहेगा आगे उसके कजिन्स को, हम आगे नहीं पढ़ेंगे, कजिन को कहेगा कि इन लाशों को उठाकर तुम बाहर फेंक दो, मगर ख्याल करना कि यू आर अनॉइंटेड. तुम लोग अनॉइंटेड, क्योंकि वो भी हाई प्रीस्ट थे. तुम लोग अनॉइंटेड हो तो इस खेमे से बाहर मत अपने पाँव निकालना, उनको बस बाहर रख दो, फेंक दो, ताकि ये, क्योंकि लाशें उस टाइम हाथ भी नहीं लगा सकते थे लाशों को, क्योंकि अगर आप गए हो तो आप उस दिन हैकल में नहीं जा सकते थे. 7 days. You are unclean, you are not 7 days. अब वो वहां पे कह रहे हो उसको बाहर फेंक के आ जाओ, जो हो गया सो गया, उनको बाहर फेंक के आ जाओ. और तुम लोग ने पाँव मारने करना, ये ना हो कि खुदा फिर तुमसे भी नाराज हो जाए, उनको फेंके वापस आ जाओ. अब वो ये काम करते हैं और वापस आ जाते हैं, और वो दिमाग में दोनों अब ब्लेस कर रहे हैं. खुदा के जरूरी है वहां पे आ गए. You can imagine how important sacrifice is. That's why we were reading this. Sacrifice जो खुदावन को इतना पसंद है, क्योंकि हमारे कलाम में लिखा है कि our life should be a living sacrifice of praise to God. हमारी जिंदगियों को it's a living sacrifice, क्योंकि इसलिए यीशु मसीह इस दुनिया में आया ताकि उसने हमारे लिए कुर्बानी दी. मैं एक दिखाने के लिए कितनी कुर्बानी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. चाइना में क्रिश्चियंस को क्या करते हैं, अब मैं रिसेंटली एक वीडियो देख रहा था, उनको कहते हैं कि तुम क्रिश्चियन हो, कहेंगे हाँ मैं क्रिश्चियन हूं, एक उंगली काट देते हैं. इनकार करो, नहीं करेंगे, दूसरी उंगली. आप करोगे इनकार, नहीं, तीसरी उंगली. खुदावन के लिए अपनी जान दोगे, हाँ, चौथी उंगली. जब तक वो ना ही मानते, हाथ काटते रहते हैं. Oh my goodness. और उनको बिल्कुल उनकी बॉडी पार्ट को काट देते हैं. एक और वीडियो देख रहा था, इट्स गोरी एंड डिस्गस्टिंग. एक आज जिंदा आदमी को गर्दन उसकी काटते रहे जब तक उसे इनकार करता रहा. हम यहाँ पे बैठ कर, अमेरिका में हम कितने लकी हैं कि हम खुदा को फ्रीली वर्शिप कर सकते हैं. हमारी कलीसिया, आई नो वी आर वेरी वेरी अपबीट, वी आर वेरी फिल्ड विद द स्पिरिट, मगर कुर्बानियां हम नहीं देते. हम सोचते हैं हम जरूर थोड़ा ज्यादा टाइट कर देते हैं, that's sacrifice. Yes, tithing is very important. मगर जो sacrifice जो हमने और रसूलों ने किया है, जो लोग आज तक कर रहे हैं, that's missing. And we need to understand how important sacrifice is. अब खुदावन यीशु मसीह ने एक आदमी ने कहा था कि केरल तू मेरे पीछे आ. तो उस आदमी ने क्या कहा था कि मैंने पहले अपने बाप को दफना के आ जाऊं. खुदा ने कहा था कि let the dead bury the dead. अब क्या मतलब है, खुदावन यीशु मसीह रूड बन रहा था क्योंकि रिस्पेक्ट नहीं कर रहा था उसके बाप की. उसका बाप मरा है. We wanted to bury him. अब इस्राइल में in Jewish ancient Israel actually, ना अभी नहीं करते, ancient Israel में अब वो क्या करते थे, वो actually उनको दफनाने नहीं जा रहा था अपने बाप. What they did was they had 2 burials for the dead. एक दफा वो दफना देते थे, ठीक है, एक दफा दफना दिया. अब वो क्या करते थे, पूरा साल रुकते थे ताकि पूरी बॉडी गल जाए और सिर्फ हड्डियां रह जाएं. फिर वो खोदते थे, हड्डियों को एक बॉक्स में डालते थे और वो जेरूसलम जाके उनको दफनाते थे हड्डियों को. अब वो दूसरी दफा अपने बाप को दफनाने जा रहा था. That's what Jesus meant
कि तुम अपने let the dead bury the dead. I don't care कि तुम उसको 2 दफा दफनाओ. तुमने अपना कई दो काम कर दिए. Now it's your time to follow me. Follow me. खुदावन यीशु मसीह के ये मकसद नहीं था कि अपने बाप को अकेला छोड़ आओ. खुदावन यीशु मसीह से ज्यादा ताबेदार बेटा दुनिया में कोई नहीं हो सकता. वो ये कभी नहीं चाहेगा कि अपने बाप को छोड़ के इस तरह आ जाए. He meant कि जो दूसरी दफा तुम दफना रहे हो, that's irrelevant. I didn't order this. Part of the ritual. That's part of the ritual. It's not part of the whole purpose that I'm here. I want you to follow me. जब तक मैं तुम्हारी जिंदगी में हूँ, you have everything. Amen? And that's what we have to understand. We have to understand the sacrifice, the whole definition of sacrifice. To understand, हारून को हम देखते हैं, हारून खड़ा है, उसके बेटे मर गए उसके सामने, आग में भस्म हो गए, मगर he has to stay calm, stay in the spirit और अपना काम करना है. And it's a very big testimony for me. Testimony for me too. मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं एक खादिम होने के नाते, मेरे सामने कुछ हो जाता है, मेरे बहन भाइयों को, मेरी फैमिली को मेरे सामने बैठे हैं, तो I wouldn't be able to continue. मैं तो नहीं कंटिन्यू कर पाऊंगा. कैसे कर, कोई ऐसे बंदा कोई कुछ हो जाए या कोई मेरे फ्रेंड को कुछ हो जाए, I won't be able to concentrate. मगर उसको he had to, and that's what we have to understand to do. क्योंकि वक्त नजदीक है, खुदावन जल्द आने को है. हमने अपने आप को तैयार करना कि हम पे बहुत सारी बातें होंगी, बतान लगा जाएंगे लोग, हमसे कलाम ले लिया जाएगा, लोग हमें सैक्रिफाइस के लिए बोलेंगे. We have to do it. We have to do it. यूहन्ना को क्या किया था आखिरी दिनों में? एक है उसके मार्टिनम का है. यूहन्ना को जो खुदा के सबसे चहीता उसका शागिर्द था, उसको तेल में डुबोया जाता था, फिर निकालते थे, फिर उबले तेल में पूछते थे कि खुदा यीशु मसीह को तू मानेगा कि छोड़ेगा कि नहीं? कहते नहीं छोड़ूंगा. फिर डुबोते थे, फिर निकालते थे. इमेजिन, रसूलों ने इतना किया. और हम इतनी सी कुर्बानी, कभी चर्च जाना हो या हमें किसी दुआई मीटिंग में जाना हो या किसी के लिए अवेलेबल होना चाहिए. वी हैव टू स्टे अवेलेबल. जैसे मैंने पहले कहा था, गॉड लाइक्स फैट पीपल, फेथफुल, अवेलेबल एंड टीचेबल, ताकि हम खुदा की आवाज सुन सकें, उसके काम में आगे बढ़ के जा सकें. आइए अपने कदमों पर खड़े हों.